Okay, good morning, students. Today we'll discuss about the formation of band in semiconductor physics. So, how the energy band gets formed. So, see here, in the suppose we'll consider the individual atom. Okay, any individual atom. So, it consists the nucleus. Okay, so center part is what nucleus. Okay, and then it consists the yes, proton plus neutron. They are Yes, neutral. sir. So it is a proton plus neutron, and this is a positively charged nucleus. Then around this nucleus, the electrons are revolving in a cell. So suppose I am considering this is a K cell, then next cell is L cell and M cell and so on. So in that cell, the electrons are present. Okay, so they are revolving around the nucleus. So if we consider this is a one electron in a particular, okay, this K cell. So again we know in each cell how many electrons can occupy. So we know the formula 2n square. So for first orbit n is 1, so then 2 electrons can revolve in that. Okay, in the next cell the 8 electrons, then 18, and then according to the electron distribution, we know the first energy state. So electronic configuration, how you write the electronic configuration? Can anybody tell me? First, That one is to is yes, in the form of a cell. So one S2. Okay, then next. So in 2s2, yes, this is S electron, right? Then 2s, 2, then 2p, 2p6, 6, then 3s2, 3s2, then 3p6, 3p6, then 4s2, 3s2. 3d10, 3d, 3d10, 3d10. 3d10, 3d10. So Yes, this is first, for K cell. This is for second cell. Then this one is for third cell, like 18. So 2, 8, and then 18, and so on. Okay. So we are going to consider here individual atom, and it consists the one electron, and it has a some energy because electron in this state has a some particular energy. Okay. So हमने consider किया कि इसकी energy मान लो E है of this particular. So individual atom electrons can revolve and having energies E. Now its corresponding energy level, I'll say E1. So corresponding energy level, you can show like this energy level E1. Okay, for this particular one atom. If I consider the another atom here, so which is on the same energy level, like this. Okay, now when another atom brought together, so this is a one atom of same material, and this is a second atom of same material, and these are the same electrons. Okay, जो ये consider किया था same electrons है. And when these two atoms brought together, so this atom interact with this atom, and even though there is an electron interaction, so when two electrons or two atoms come together having a same energy, so now due to the interaction, what happens, their wave function now not overlapping, and it gets split. So according to the Pauli's exclusive principle, no two electron in the given system, interacting system, can have a same quantum state. Hence सेम एनर्जी नहीं होगी उनकी. तो अब इनकी एनर्जी इवन दो इन सेम इलेक्ट्रॉन से सेम ऑर्बिट वाले, फिर भी जब ये एक साथ आएंगे दो एटम्स, तो इनमें इंट्रैक्शन होने के कारण इनकी एनर्जी स्लाइटली डिफरेंस होगी. अब ये एनर्जी इक्वल नहीं होगी. Okay, this is very small difference in the energy, and that difference is 10 to the power minus 28 electron volt, you can remember. But here that energy difference is slightly, okay, different. So E1 is the energy of this electron, and this E2 is the energy of second electron. So now this is a quantized energy, and this is now splitting of energy level, which is very closed. This is regarding the two atoms. When we consider the three atoms come together, okay, then three same electrons, okay, interact with each other, and they form a, again the wave function of this not overlapping quantum states are different, energies are different, which is slightly different, but they are indicated by the energy level E1, E2, and E3, and there is a, again splitting of the energy. Remember, these energy are a discrete energy of same electrons, but a very small difference between them. Okay, so इसे तीन एनर्जी लेवल्स इसके फॉर्म हो गए. Particularly I am talking about this electron. Now when n number of atoms come together, and they are
situated in this fashion regularly arranged. So we have n number of such energy levels of the same electron. ओके समझ में आ गया? तो इससे एक बैंड फॉर्म हो गया, तो दिस इज ए एनर्जी बैंड। तो ये एनर्जी बैंड कौन से इलेक्ट्रॉन का है? मान लो ये इस स्टेट का, इस स्टेट का। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इसकी एनर्जी स्टेट, और मे बी इन द फर्स्ट सेल यू कैन से। सपोज ये समझ में आ गया हाउ द बैंड गेट्स फॉर्म? Yes, sir. तो जैसे नंबर ऑफ एटम्स we brought together, so they have a discrete energy level of same electrons and form a energy band. So इस energy band में ये slightly different energy level से from E1 to En of n number of atoms. Now second, अब थोड़ा सा डिटेल्स में जाते हैं। सपोज वी विल टेक एनी वन एग्जांपल ऑफ एलिमेंट। सपोज वी आर गोइंग टू टेक ए कार्बन। सो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज व्हाट? 6, राइट? सो कार्बन 6 को हम कैसे क्लासिफाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2, 1s2, 2s2, 2p2. 2s2, 2p2। बट एक्चुअली कितना होता है ये? 1s2, 2s2, 2p6। ये स्टैंडर्ड है। अब यहाँ पे माइक बंद करिए, किसका ऑन है? तो ये 2s इलेक्ट्रॉन है, these are the 2s electrons, and here we have a 2n number of state available for these electrons। तो दो n number of state है, तो इसमें दो electrons occupied होंगे। Similarly here 2n number of states are available and we have a 2s electrons, two more, so it can occupied। Here we have a 6n number of states available, and how many electrons we have? 2p electrons। Now what happens here? How many energy levels we have? 6, okay, 6 energy states, and how many electrons we have? Only 2। So how many electrons filled, or how many states gets filled here? Can you tell me? 2, 2। So how many remaining? 4. 4 states are still empty, in such a way that if we consider this electron and this is electronic configuration, so each atom of carbon has two 1s state। कितने स्टेट है? 2 1s स्टेट, यहाँ पे ध्यान में रखिए। हाउ मेनी 1s स्टेट? 2। 2. देन 2 2s स्टेट, है ना, एंड 6, कितने? 6 2p स्टेट। ठीक। सो हर एक कार्बन एटम के लिए दो 1s स्टेट होंगे, दो 2s स्टेट होंगे, एंड 6 2p स्टेट होंगे, एंड हायर स्टेट्स आर आल्सो अवेलेबल इफ दे हैव। देन hence n number of atoms suppose come together, there will be a 2n। समझ में आ गया? 2s स्टेट है ऐसे ना, 2 स्टेट है, तो इसके n नंबर ऑफ एक एटम के लिए थे 2। अब ऐसे n number of atoms come together, so how many states available now? 2n, 2n and 6n states। समझ गए? Yes. है ना, n number of atoms available state for type 1s, 2s and 2p। तो 1s के इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड करने के लिए 2n स्टेट है, 2s स्टेट के इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2s इलेक्ट्रॉन के लिए वी हैव 2n स्टेट, एंड 2p के इलेक्ट्रॉन के लिए वी हैव 6n स्टेट। बट वी नो when individual atom if we consider, so we have a 2n 2n and 6n state, but out of 2n gets filled because of these two electron, this second state is also gets filled, and third state have a, see here, we have a 2n electron, and how many states? 2n states। we have 2n electrons and 2n state, correct है? ये 2n हो गया। now we have 2n electrons, but how many states available for us? 6n। तो समझ में आ गया? तो 6n स्टेट है। तो यहाँ पे चांसेस क्या है कि ये खाली रहने के चांसेस है ना, इट शुड बी नॉट फिल्ड कंप्लीटली, सो सम एनर्जी लेवल्स रिमेन्स एम्प्टी। तो जैसे इंडिविजुअल आइटम है, तो ये फुल्ली ऑक्युपाइड है, ये फुल्ली ऑक्युपाइड है, तो यहाँ पे 4 स्टेट्स कैसे रहेंगे? एम्प्टी, एंड 2 स्टेट्स आर फिल्ड। तो मान लो कि एनर्जी लेवल 6 है ऐसे, तो इसमें से 2 भर जाएंगे, रिमेनिंग 4 आर एम्प्टी। बट यहाँ पे ऐसे नहीं, जितने स्टेट है उतने इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये फुलफिल है, ओके, इंडिविजुअल आइटम के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड द like one more atoms brought together। so हम क्या कर रहे हैं? इंटर एटॉमिक डिस्टेंस उनका डिक्रीज कर रहे हैं। तो पहला आइटम यहाँ पे था, दूसरा आइटम यहाँ पे था आइसोलेटेड, हमने ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्लोज किया, डिक्रीज किया। तो यहाँ पे पहले तो लार्ज डिस्टेंस था,
अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट किया, मीन्स द एटम्स कम टुगेदर, क्लोज टुगेदर, सो दे आर स्टार्ट टू इंटरेक्ट, देन नंबर ऑफ स्टेट्स इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, है ना। जैसे 2n स्टेट, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए 2 स्टेट थे, फिर 4 हो गए, देन 6 हो गए, देन 8 स्टेट एंड सो ऑन। सो एनर्जी स्टेट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग, एंड एक टाइम ऐसे आएगा जहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी स्टार्ट होगा। तो मान लो कि यहाँ पे तक 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 एटम्स थे, नाउ 3 एटम्स हो गए, n एटम्स हो गए, तो n एटम के 2n स्टेट ऐसे आएंगे, पहले स्प्लिट हो गया ना, जैसे हमने बैंड देखा कैसे फॉर्म हुआ, सिमिलरली एक बैंड इसका फॉर्म हो गया, किसका, 2, ये 1s इलेक्ट्रॉन का, जिसके 2n स्टेट है, समझ रहे हो। तो एक पर्टिकुलर 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन का हम ले रहे हैं, तो इससे एक बैंड बनेगा पूरे, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम टुगेदर, n नंबर ऑफ एटम्स कम टुगेदर, तो ये बैंड स्प्लिट होते जा रहे हैं, समझ में आ रहा है। जैसे नंबर ऑफ स्टेट्स ऑक्युपाइड बाय n इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली 2s वाला, ये जो सेकंड है, सो सेकंड आल्सो फुलफिल दिस, एंड n नंबर ऑफ एटम्स हम जब लेके आएंगे एक साथ, तो इनका भी स्प्लिटिंग होगा बैंड का। देन 2p स्टेट, 2p स्टेट में मुझे पता है कि ओनली 2 स्टेट हर एक एटम में फुलफिल है, 4 एम्प्टी है, तो ऐसे देखिए कितने एम्प्टी रहेंगे, 4n state are remaining empty and 2n state filled by the electrons. But problem यहाँ पे है कि 1s and 2s में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, बट 2s and 2p में एनर्जी डिफरेंस कम है। तो ये एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होता है 1s and 2s में, 2s and 2p में एनर्जी डिफरेंस कम है। तो ये जैसे हम एटम्स को एक साथ लेके आते हैं, तो ये एनर्जी जो बैंड्स है, दे आर गोइंग टू मर्ज इन द 2s, तो 2p एंड 2s के कुछ नंबर ऑफ एटम्स एक साथ आने के बाद और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम करने के बाद एक साथ ये मर्ज हो जाते हैं, एंड इससे एक दोनों भी बैंड एक साथ ओवरलैप हो जाते हैं। बट इस स्टेट में हमें पता है कि इसके दो एनर्जी स्टेट, इसके दो एन 2n एनर्जी स्टेट आर फुल्ली filled, so 4n totally have a electrons, and how many remaining total state कितने, इसके 6 और इसके 2, तो 8 स्टेट है, तो 2 4n इलेक्ट्रॉन्स है और 8n स्टेट है, तो इसमें से हमें पता है कि 4n ही फिलअप होने वाले। एंड देखिए यहाँ पे 4n इलेक्ट्रॉन ने 4n ऑक्युपाइड किए, बट नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल फॉर अस, एंड 4n स्टिल स्टेट्स आर अवेलेबल, तो ये स्टेट अवेलेबल स्टेट फिर सेपरेट हो जाते हैं एंड फुल्ली फिल्ड सेपरेट हो जाते हैं। तो एंटर एटॉमिक आप कितना क्लोज करते लेके आएंगे, अप टू द इक्विलिब्रियम। अब इसके आगे ये एटम एक दूसरे के क्लोज नहीं जाएंगे, सभी एटम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल एन एटम्स। सो ये इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी, और उस इक्विलिब्रियम स्टेट पे हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा, तो ये होगा आपका वैलेंस बैंड, जो कि जहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, पूरा 0 इलेक्ट्रॉन्स, एंड 4n स्टेट अवेलेबल, इसमें 4 स्टेट अवेलेबल है, बट इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। इसके बीच में कुछ गैप होगा एनर्जी, इसे हम बैंड गैप बोलते हैं जनरली इसी, और ये नीचे आएगा जो वैलेंस बैंड कहलाएगा, जो ऑलरेडी फुल्ली फील्ड है। तो इसीलिए हम जनरली बोलते हैं कि एट इक्विलिब्रियम वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फील्ड एंड conduction band is completely empty, and this is how the band gets formed। तो ये लोअर एनर्जी वाले हैं। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन एटम को दिखाता हूँ, तो पहले एनर्जी स्टेट है, जब मान लो उससे जो एनर्जी लेवल बनेगा ये है ना, ये वाला जो फुल्ली फिल्ड है। दूसरा जो है माई लाइक दिस वन, तो इसमें कुछ सब सेल्स रहेंगे 2s वाले और 2p वाले, तो ये 2s वाले का ये एनर्जी एंड 2p वाले का एनर्जी स्टेट, तो इसमें बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड ऐसे तैयार हो जाता है। नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल इसके ऊपर होगा समवेयर, ठीक है, जो नेक्स्ट ऑर्बिट वाला होगा। सो लाइक दिस यू हैव टू इमेजिन सो दैट फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स, ठीक है। तो ऐसे एक जनरल स्ट्रक्चर बन जाता है। ये 2n स्टेट है, तो इससे ये कम्प्लीटली फील्ड है। देन ये बैलेंस बैंड है, जिसको को भी हम कम्प्लीटली फील्ड बोलते हैं, एंड दिस इज व्हाट कंडक्शन बैंड in which there is no electron, so 0 electron is present here। So I hope so formation of energy band सबको समझ में आया है। Yes. ओके, तो सोलर सेल एंड हॉल इफेक्ट कल हुआ था हमारा। Yes, sir. कोई डाउट था सोलर सेल? क्विकली, एनी डाउट?
नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज ए क्रोनी पेनी मॉडल, जो इन शॉर्ट आपको बताना था कल, पेंडिंग था। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी लेने हैं हमें। सो क्रोनी पेनी, PENNY, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, पेनी क्रोनिंग मॉडल। सर यस। सर आवाज आ रहा है? सर वो हाँ बोलिए। हॉल कांस्टेंट्स का और वो उसके न्यूमेरिकल्स आज ही लेंगे ना? हाँ हाँ, आज ही कंप्लीट करना है, ठीक है। ओके सर। पेनी एंड क्रोनिंग मॉडल, इसमें एक थोड़ा सा इन शॉर्ट एक ही स्टेटमेंट है दैट आई विल टेल यू। जनरली ये होता है, सपोज अलाउड एनर्जी स्टेट इफ यू वांट टू फाइंड in a solid, so which are the allowed energy levels, so we have to apply the Schrodinger wave equation। ध्यान में रखिए, अगर आपको कोई भी सॉलिड में कितने एनर्जी लेवल्स अलाउड है फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, ओके। सो ध्यान में रखिए, सॉलिड में अगर मुझे अलाउड एनर्जी लेवल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अलाउड एनर्जी लेवल्स वी हैव टू फाइंड इन अ सॉलिड, सो वी शुड हैव टू अप्लाई द स्क्रॉडिंजर इक्वेशन। ओके, ये स्क्रॉडिंजर इक्वेशन हम क्वांटम मैकेनिक्स में लर्न करेंगे, दैट इज अ वेव इक्वेशन। ओके, मैटर वेव का इक्वेशन है। सो इलेक्ट्रॉन के अलाउड एनर्जी लेवल्स इफ यू वांट टू फाइंड इन सॉलिड, सो वी शुड हैव टू अप्लाई द स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन इन अ क्रिस्टल लैटिस। ओके, सो इसमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर ये क्रोनी और पेनी इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ही सजेस्टेड दैट सिंपल मॉडल consisting of a infinite row of rectangular potential well, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करेगा क्रिस्टल में ये एक्सप्लेन किया था। सो दे सेड दैट infinite, okay, rows of rectangular potential wells separated by a barrier of width b. So one dimensional, that representation I'll show here. So when the electron is traveling in a lattice, suppose अगर जनरली ये होता है कि यहाँ पे ये आयन है, this is one more ion, so we are going to draw, these are the ions, positive charges, okay, here, uh, and some interatomic distance is there. So these are all positive ions are regularly arranged in a crystal. So when electron is traveling, so that electron feel the variable potential। तो ये इसका डायग्राम हम जनरली इसे ड्रॉ करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहा है, सो दैट इलेक्ट्रॉन फील द वेरिएबल पोटेंशियल, सो दिस इज व्हाट द इंटरएटॉमिक डिस्टेंस ए। तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से जाने वाला, तो ये ऐसे पोटेंशियल फील करेगा नियर टू द, जैसे ये इसके क्लोज आएगा इलेक्ट्रॉन, तो ये जीरो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, और जब इन बिटवीन है, सो इट फील द हायर पोटेंशियल। सो दिस इज हाउ द वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज ट्रैवलिंग इन अ लैटिस। जैसे इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहा है, मान लो कि यहाँ पूरा पॉजिटिव आयन से, ये पॉजिटिव आयन से, and when the electron is traveling through this, so definitely they feel the attraction, okay। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स इसमें से चला जाएगा, जब ये क्लोज आएगा आयन के, तो इसमें पोटेंशियल कितना होगा, लो होगा। जैसे दूर जाएगा इंक्रीज इंक्रीज होगा, फिर क्लोज आ गया देन डिक्रीजेस, सो देन लाइकवाइज। सो ये हमने जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहा है थ्रू द लैटिस, दिस इज द डायग्राम हाउ द वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल। तो यहाँ पे कम पोटेंशियल है, यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल है। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स रीच इन बिटवीन, जैसे यहाँ पे आ गया इसके बीच में, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल ज्यादा होगा ना। अब जब क्लोज आएगा तो पोटेंशियल गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो यही क्रोनी एंड पेनी ने सजेस्ट किया था कि ये जो बैरियर है, ये यहाँ पे ऐसा वेरिएशन नहीं होगा, सो इट इज लुक्स लाइक ए सम स्क्वायर वेल। तो यहाँ जब जाएगा ये, तो ये पोटेंशियल maximum होगा, then it will minimum when it is come close. So it's look like this, it is a square potential well. The variation of the potential is not like a that sharply uh, like that waveform, so it is like a square wave, ऐसे वेरिएशन होगा। सो जीरो मैक्सिमम, जीरो मैक्सिमम। ये क्रोनी पेनी का सजेशन था कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज ट्रैवलिंग थ्रू अ लैटिस, सो इट फील द variation. So here V is 0 and here V is almost infinite. Okay, so in between that potential is 0, so when the electron is traveling, so ये एक ध्यान में रखिए कि according to this theory the potential of electron varies periodically। ये इलेक्ट्रॉन का potential of electron is varies। कैसे वैरी होता है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है।
periodically. Okay. In iron core like nucleus. So potential energy of electrons near the nucleus, potential energy of electron near the nucleus, ये एटम है पॉजिटिव आयन मतलब, तो नियर द न्यूक्लियस क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी बताइए इलेक्ट्रॉन की, नियर द न्यूक्लियस पोटेंशियल एनर्जी इज हाउ मच, अरे ये एनर्जी ग्राफ है, 0. और ये इलेक्ट्रॉन जब इसके क्लोज जाएगा यहाँ पे तो पोटेंशियल कितना हो रहा है जीरो, और व्हेन इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस देन पोटेंशियल एनर्जी इज हायर. सो इतना ही ध्यान में रखिए, नियर द न्यूक्लियस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ electron is zero and it is maximum when it is in between, right? Yes. Okay, so that ये आपको इतना ही ध्यान में रखना है. समझ में आ गया रोनी पेनी का सजेशन? Yes, sir. व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रीच, ये अगर आपका एटम है और ये पॉजिटिव आयन मतलब न्यूक्लियस है, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा नियर टू द न्यूक्लियस तो उसकी एनर्जी, ये जो ग्राफ है तो ये ऐसे डिक्रीज 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 होते आएगा, पोटेंशियल एनर्जी बिकम जीरो. सो व्हेन इट इज मूविंग अवे फ्रॉम दिस, सो अगेन इट गोज ऑन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग. तो पहले ये ऐसे ग्राफ निकालते थे, क्रोनी पेनी ने सजेस्ट किया कि इट इज लाइक ए स्क्वायर वेव पोटेंशियल वेव. इसके बाद स्क्रॉडिंजर ने ये इक्वेशन सॉल्व किए और एनर्जी स्टेट फाइंड आउट किया अलाउड. तो आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज ट्रैवलिंग थ्रू अ लैटिस और आयंस, सो इट्स अ potential is varies periodically and it is zero near the nucleus and it is increases when it is moving away from the nucleus. That's it. Okay, so this is the end of the semiconductor physics, okay, in which we have to solve some numericals and take it quickly because we don't have too much time. I'm going to solve a few numericals which are important for you. Okay, ready? Yes, sir. All of you have to take a pen and a notebook and quickly note down the numericals. तो मैं आपके साथ सॉल्व भी करूंगा और आपको लिख के भी लेने हैं, ठीक है? फर्स्ट न्यूमेरिकल्स वी आर गोइंग टू टेक ऑन कंडक्टिविटी. अब कोई न्यूमेरिकल्स इस फॉर्मूले के ऊपर भी आ सकते हैं कि कैलकुलेट द बैंड गैप एनर्जी इन द जर्मेनियम एंड वेवलेंथ इज गिवन. तो एक न्यूमेरिकल्स हम इस टाइप का भी सॉल्व करवा के लेते हैं. कैलकुलेट द बैंड गैप एनर्जी इन जर्मेनियम, तो हमें इजी निकालना है जर्मेनियम में, ठीक है, बैंड गैप एनर्जी. गिवन दैट द ट्रांसपेरेंट इट इज ट्रांसपेरेंट टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ ग्रेटर देन, जब ये वेवलेंथ हमें दी है अगर 17760 एंगस्ट्रॉम है तो उसके लिए करस्पॉन्डिंग बैंड गैप निकालिए. सो लैम्बडा दिया हुआ है, तो उस केस में आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास इजी है, तो सॉरी इजी निकालना है, तो मुझे फॉर्मूला पता है, इजी इज इक्वल टू एच न्यू, ई इज इक्वल टू एच न्यू, है ना, एच न्यू. तो एच न्यू इज व्हाट, सी बाय लैम्बडा. इसमें एच प्लैंक कांस्टेंट है आपको पता है सभी को, 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34, ओके, इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्बडा अब दिया हुआ है 17760 एमस्ट्रॉन्ग में. ध्यान में रखिए एमस्ट्रॉन्ग में दिया है तो इसे मीटर पर सेकेंड ये हमने पुट किया, तो यहाँ पे मीटर ही पुट करना होगा -10. तो ये सब सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा, एनर्जी ऑलवेज कम्स इन द जूल, तो ये आएगा 1.12, okay, into 10 to the power -19 if you solve in joule. But generally we want to find the electron volt, energy in electron volt. So जब जूल का कन्वर्जन करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसे 10 टू द पावर सॉरी कितने 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से डिवाइड करना है, तो आंसर आएगा 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो बैंड गैप एनर्जी इन अ जर्मेनियम इज 0.7, ये ध्यान में रखिए. तो हमें पता है सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और जर्मेनियम के लिए ये 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ये भी ध्यान में रखिए. तो आपका आंसर वेरीफाई होगा. सो होप सो ये जब सॉल्व करें, सो ये मैंने फिजिकल मोड में बताया था कि कैलकुलेटर के ऊपर इतना इजी नहीं है, तो आप एक ब्रैकेट में ये पूरा करना है, देन डिवाइडेड बाय दिस इज इन सेकंड ब्रैकेट, ब्रैकेट में करते चलिए कैलसी के ऊपर, सो दैट आंसर गलत नहीं होगा. तो ये एनर्जी बैंड गैप के ऊपर एक न्यूमेरिकल्स के चांसेस है, तो वो आप सॉल्व करेंगे. सेकंड इज कंडक्टिविटी, ठीक है. तो कंडक्टिविटी में एक न्यूमेरिकल्स में बताता हूँ आपको, नोट डाउन दिस न्यूमेरिकल्स, एवरीवन हैज टू नोट डाउन दिस. आई एम नॉट राइटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन. कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ जर्मेनियम सैंपल.
ready? Calculate the conductivity of germanium sample if donor impurity is added. कौन added हो रहा है? Conductivity निकालना है. So donor impurity is added, okay, to the extent of, कितना ऐड करें? To the extent of 10 to the power 7. कितना ऐड करें? 10 to the power 7 germanium atom at room temperature. Okay, given data है Avogadro's number Na is given 6.02 into 10 to the power 23 atoms, okay, per gram mole. Atomic weight of germanium is given 72.6. Mobility mu e 3800, ये सम इम्पोर्टेंट है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट मीटर वोल्ट सेकेंड सॉरी. Density of germanium 5.32 gram per cc. ओके, सो आपको ये निकालना है कि कंडक्टिविटी कितना होगा जर्मेनियम सैंपल का. तो कंडक्टिविटी हम जर्मेनियम में ये 10 टू द पावर 7 एटम में इम्प्यूरिटी ऐड करें. सो 1 पार्ट मतलब 1s2 डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 1s2 10 टू द पावर 7. सो 10 टू द पावर 7 ये, और इसमें जर्मेनियम में डोनर लोग ऐड कर रहे हैं. तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ने वाली है. वी नो व्हेन वी आर गोइंग टू डोप द मटेरियल, सो कंडक्टिविटी ऑब्वियसली इंक्रीजेस. तो कितनी होगी? तो ये सब कुछ दिया हुआ है. सो डेंसिटी दिया हुआ है. सो पहले तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स निकालने पड़ेंगे. सो डेंसिटी ऑफ जर्मेनियम कितना है? ये, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए. मास ऑफ 1 cc ऑफ जर्मेनियम इज हाउ मच? अगर ये दिया हुआ है तो इससे क्या पता चलता है? मास ऑफ जर्मेनियम इन 1 cc. तो पर सीसी है तो इतना होगा मास ग्राम में. ठीक है, मास ऑफ जर्मेनियम कितना हुआ? 5.32 ग्राम पर सीसी. ओके, एंड इन ईच ग्राम हम ना, ये इसका एटॉमिक वेट दिया है तो मतलब 72.6 ग्राम में okay, कितने एटम्स हैं? Contains how many germanium atoms? That is given by the Avogadro's number. So 6.02 into 10 to the power 23 atoms. इतने ग्राम में इतने एटम्स है तो हमें ये मास पता है. ठीक है, so number of germanium atom in 1 cc कितने होंगे? फिर number of germanium atom in 1 cc कितने मिलेंगे? तो इससे हम डिवाइड करेंगे. एवोगाड्रोस नंबर ध्यान में रखिए, फॉर्मूला डिवाइडेड बाय ये 72.6 इनटू इसके लिए 5.32 ग्राम के लिए. तो ये आंसर मिलेगा. देखिए कैसे कैलकुलेट किया. एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स, ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए. एवोगाड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट इनटू डेंसिटी. तो इससे मिलेंगे नंबर ऑफ एटम्स मुझे. तो ये आंसर मिला 4.41 इंटू 10 टू द पावर 22. समझ गए? नंबर ऑफ एटम्स पर सीसी cubic centimeter. अब there are suppose n this number of atoms, okay, per cc. So and one we know ratio is 1:10 to the power 7 germanium atoms. तो इतने germanium atom 1 इसमें, तो हमें 1:10 to the power डोपिंग करना है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखिए एक के लिए एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो इस इतने के लिए कितना होगा? सो 4.41 इंटू 10 टू द पावर 22 इतने एटम है डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 7, ये हमारा रेशियो है. तो इससे कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे मुझे? समझ में आ रहा है? ये नंबर ऑफ एटम्स इन 1 cc, एक क्यूबिक सेंटीमीटर में इतने एटम्स है n.
अब मुझे डोनर, मैंने डोपिंग किया है 10⁻⁷ इतने इसमें, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहेंगे, सो आई हैव टू डिवाइड बाय दिस। सो ये फैक्टर मिलेगा मुझे 4 पॉइंट, देखिए 7 ऊपर जाएगा, 4.41 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ध्यान में रखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है। तो पहले तो हमने नंबर ऑफ एटम्स निकाले, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले फ्री कितने, देन इलेक्ट्रॉन वी आर गोइंग टू फाइंड डायरेक्टली कंडक्टिविटी, बिकॉज डोनर है तो कौन सा फॉर्मूला होगा, एन टाइप का, राइट, समझ रहे हो। सो एन टाइप का क्या फॉर्मूला है, सिग्मा इज इक्वल टू एन ई म्यू, राइट, एन ई म्यू। तो एन इज व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना आ गया 4.41 इंटू 10⁻15 into E is how much, 1.6 into 10 to the power minus 19 into mu, mobility is given 3800 centimeter square per volt second। तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद मुझे कंडक्टिविटी मिलेगी 2.6813, ओके, मोर पर सेंटीमीटर। तो इस टाइप का ये न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करना है 3 स्टेप में। कोई डाउट है, एक और सॉल्व करते हैं, वी डोंट हैव टू मच टाइम टू आस्क यू। सेकेंड न्यूमेरिकल्स टेक्निक, calculate the conductivity of germanium specimen if donor impurity is added to the extent of 10 to the power 8। कितना डोनर इम्प्यूरिटी ऐड करना है बोलते चलिए, 10 टू द पावर 8 जर्मेनियम एटम एट रूम टेम्परेचर। एटॉमिक वेट ऑफ जर्मेनियम कितना दिया है 72.6, ओके, डेंसिटी दी है 5.32, मोबिलिटी दी है 3800, ओके, एवोगैड्रोस नंबर दिया हुआ है 6.02 इंटू 10⁻23। हाउ यू सॉल्व विल टेल मी क्विकली। पहले क्या करना होगा, नंबर ऑफ एटम्स है ना, नंबर ऑफ जर्मेनियम एटम्स पर सीसी। एक सीसी के लिए कैसे निकालते हैं, एवोगैड्रोस नंबर, आवाज येतोय का माझा सांगा। हो सर। हाँ Yes. सांगा, Course. एवोगैड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला ध्यान में रखो, एटॉमिक वेट एटॉमिक वेट इनटू डेंसिटी। सो ये आएगा 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट 72.6 इंटू डेंसिटी 5.32। सेम आंसर मिलेगा। दूसरे स्टेप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, तो जो आंसर मिलेगा डिवाइडेड बाय ये फैक्टर। तो आंसर कितना आया था हमारा प्रीवियसली 4.41, सेम आएगा इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय 10⁻8 से डिवाइड करना, ठीक है, जो रेशियो था कॉन्सेंट्रेशन डोपिंग का। तो इससे मिलेगा 4.41 इंटू 10⁻14, करेक्ट, Yes. पर सेंटीमीटर क्यूब। और फिर कंडक्टिविटी निकालनी एन ई म्यू, तो एन पुट करेंगे 4.41 इंटू 10⁻14 इंटू ई 1.6 इंटू 10⁻−19 इंटू म्यू 3800, तो आंसर मिलेगा 0.268 मो पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कंडक्टिविटी अब समझ में आ गया और इजी। Yes. यस सर। कोई डिफिकल्ट नहीं है, चलो नेक्स्ट। अब ये कंडक्टिविटी के ऊपर एक ध्यान में रखना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एक्सेप्टर, है ना, तो नंबर ऑफ एक्सेप्टर एंड डोनर पूछ सकते हैं, तो इसमें एक्सेप्टर पूछे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एक्सेप्टर टू बी एडेड, कितने एक्सेप्टर ऐड करने पड़ेंगे टू द जर्मेनियम सैंपल टू ऑब्टेन द रेजिस्टिविटी 10 ओहम सेंटीमीटर। तो ये रेजिस्टिविटी मतलब हमें निकालना क्या है, दिया क्या हुआ है, रेजिस्टिविटी दिया है रो, है ना, तो कितने डोनर ऐड करने पड़ेंगे, मोबिलिटी गिवन है 1700 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। तो ये आपको दिया हुआ है, तो हमें पता है कि रो इज इक्वल टू 1 अपॉन
एन ई म्यू, है ना, ये फॉर्मूला पता है, करेक्ट। सिग्मा इज इक्वल टू एन ई म्यू, तो सिग्मा इज 1/रो, तो है ना, सिग्मा इज इक्वल टू एन ई म्यू, ये फॉर्मूला पता है, बट सिग्मा इज व्हाट 1/रो, तो रो कितना आएगा ये, तो इसमें सॉल्व करेंगे आप। ई पता है, एन पता है, क्या निकालना है आपको, एन निकालना है ना, तो एन इज इक्वल टू 1/रो ई एन म्यू, तो 1/रो, कितना है 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन म्यू 1700। ये सॉल्व करने के बाद नंबर ऑफ donor you can find out, so this is 3.6 into 10 to the power 14 per centimeter cube, ऐसा n नंबर ऑफ होल्स मिल जाएंगे आपको। तो ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद करना है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट है बताइए, मुझे टाइम नहीं है मेरे पास ज़्यादा। सिमिलरली यू कैन फाइंड फॉर द, ये देखिए कंडक्टिविटी निकाला हमने पी टाइप के लिए, ऐसे एन टाइप के लिए निकाल सकते हैं, सेम फॉर्मूला, ठीक है। सिमिलरली यू कैन फाइंड द कंडक्टिविटी फॉर द एक्सट्रिंसिक, सॉरी इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक में पी और एन हो गया, एक्सट्रिंसिक में फॉर्मूला कौन सा यूज करना है ध्यान में रखिए, सिग्मा इज इक्वल टू, बोलिए, एन इंटू ई था ना, एन, अरे इंटू ई, एन आई इंटू ई म्यू ई प्लस म्यू एच, दो मोबिलिटी दी है तो ये यूज करना है, कर पाएंगे क्या, अगर यहाँ पे एक म्यू दिया था तो ये सॉल्व किया, दो म्यू है तो ध्यान में रखना है कि ये इंट्रिंसिक का होगा, हाँ? लास्ट टाइप दैट इज ऑन हॉल इफेक्ट, एक वो सॉल्व करता हूँ फिर क्लियर होगा आपका। I know it is fast, but you should have to okay, solve some numericals. Now everyone has to write this: a slab of copper, slab of copper 2 mm, 2.0 mm in thick, okay, means thickness is given, and 1.5 centimeter wide, ये wide दिया हुआ है, is placed in a uniform magnetic field of 0.4 Tesla. So magnetic field is 0.4 Tesla. ठीक है। when current of when current of 75 ampere flows along the length, तो करंट जो फ्लो किया हुआ है along the length, and voltage is measured across width, so हॉल वोल्टेज किसके अक्रॉस मेजर किया है, width, determine the concentration of electron, ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एन निकालना है। तो यहाँ पे एक डायग्राम पहले आपको ड्रॉ करना होगा, तो इसमें ये ध्यान में रखिए कि आपका करंट कहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, ओके, ये थोड़ा सा स्पेसिमन तभी ड्रॉ करना है आपको, एंड डायमेंशंस लिखिए, ये जनरली डब्ल्यू होता है विड्थ, ये थिकनेस होता है, ये लेंथ होता है, क्लियर। तो अलोंग द लेंथ क्या है आपका करंट, समझ रहे हो। अब स्लैब ऑफ कॉपर, ये थिकनेस दिया हुआ है, सो 2 mm थिक, देन वाइड कितना दिया हुआ 1.5 सेंटीमीटर है, एंड आपको बी जो लगाया हुआ है अलोंग द, बी इज अप्लाइड अलोंग द, width, देखिए वोल्टेज अलोंग द विड्थ निकालना है, तो बी कहाँ पे अप्लाई किया होगा, ये अलोंग द विड्थ वोल्टेज निकालना है, मतलब वोल्टेज आप इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में निकाल रहे हैं, तो अलोंग द, ये क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे अलोंग द डी, थिकनेस के अलोंग होगा, है ना, सो बी इज अप्लाइड अलोंग द थिकनेस। अब मुझे फॉर्मूला ध्यान में रखिए जो बताया था हॉल वोल्टेज के लिए, इसमें बी आई ऊपर आएगा अपॉन एन ई इंटू ये क्या आएगा बोलिए, जिसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लगाया था, ये यूज करना है हमें, जिसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लगाया, जिसके अक्रॉस मेजर कर रहे हैं ना वो नहीं आएगा, तो विड्थ नहीं आएगा, मतलब क्या आएगा डी, D, समझ रहे हो,
इतना समझ में आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व। नाउ एन निकालना है, सो एन क्या आएगा, बी आई अपॉन हॉल वोल्टेज इंटू ई इंटू डी, करेक्ट। सो अब मुझे बताइए बी कितना है, 0.4 टेस्ला, इंटू आई कितना है 75, डिवाइडेड बाय वी एच हॉल वोल्टेज कितना दिया हुआ है 0.81, हॉल वोल्टेज दिया था यहाँ पे 0.81 माइक्रो वोल्ट मतलब -6, यहाँ पे वी एच दिया है 0.81 माइक्रो वोल्ट, ये माइक्रो वोल्ट इंटू ई इज हाउ मच चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कांस्टेंट इंटू डी, ध्यान में रखिए एम में करना है, मीटर में 2 इंटू 10 टू द पावर -3। अब ये सॉल्व करने के बाद एन कितना आ रहा है बताएं मुझे। क्विकली कैन एनीबडी ट्राई, आप करेंगे या मैं लिखूं यहाँ पे आंसर। द आंसर इज 1.157 इंटू 10 टू द पावर, चेक करो आप घर पे, 29 आंसर इज पर मीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए, एक और एग्जांपल लीजिए सो दैट कैलकुलेट द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, कैलकुलेट द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, म्यू निकालना है इन अ डोप सिलिकॉन, इन अ डोप सिलिकॉन whose conductivity is, जिसकी कंडक्टिविटी दी है सिग्मा 100 पर ओहम मीटर एंड हॉल कोएफिशिएंट is given 3.6 into 10 to the power -4 मीटर क्यूब पर कूलम, तो हमें म्यू निकालना है। सो आर एच इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या पता है, कल मोबिलिटी के लिए फॉर्मूला लिखा था, म्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू आर एच, RH. है ना। तो म्यू इजी है, फिर सिग्मा 100 इंटू आर एच 3.6 इंटू 10 टू द पावर -4, तो ये +2 है -4 है तो कितना आएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर -2, ओके, मीटर क्यूब पर वोल्ट सेकेंड। तो ये मोबिलिटी है, इजी है। ऊपर वाला जो स्पेसिमेन था उस टाइप का एक और सॉल्व करते हैं एंड देन विल स्टॉप, ओके। A silver wire, next, a silver wire is in the form of ribbon, एक सिल्वर वायर है ऐसे रिबन के फॉर्म में, सिल्वर वायर इज इन द फॉर्म ऑफ रिबन, 0.50 सेंटीमीटर वाइड, कितना वाइड है, ये वाइड दिया हुआ है 0.50 सेंटीमीटर एंड 0.10 in thickness, 0.10 mm in thick, ऐसे करंट लगा है इसमें। When current of 2 एम्पियर, देखिए करंट कितना फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, करंट 2 एम्पियर passes through the ribbon perpendicular to 0.80 टेस्ला, तो मैग्नेटिक फील्ड है ये बी है 0.80 टेस्ला, ओके। कैलकुलेट द हॉल वोल्टेज, हॉल वोल्टेज निकालिए, बट कहाँ निकालना है वो बताया नहीं, ओके। प्रोड्यूस द डेंसिटी ऑफ सिल्वर, डेंसिटी ऑफ सिल्वर of silver is given, which is 10.5 gram per cc, okay, and atomic weight is given 108, ये दिया हुआ है। सो हमें मास ऑफ 1 cc ऑफ सिल्वर दिया हुआ है, पर cc दिया हुआ है, सो 108 एटॉमिक वेट दिया हुआ है। सो हाउ यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, प्रीवियसली हमने निकाले थे एटॉमिक एवोगाड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय
एटॉमिक वेट इनटू, into density. तो ये 6 पॉइंट ध्यान में रखिए, इस टाइप का आ गया तो ये आपको आना चाहिए एन निकालने के लिए 6.025 इंटू 10 to the power 23 Avogadro's number divided by atomic weight is 108 into density 10.5, तो इससे मुझे मिलेंगे 5.85 इंटू 10 to the power 28 एटम्स, ओके, पर मीटर क्यूब। अब हॉल वोल्टेज निकालना है, तो मुझे ये पता नहीं, आई हैव टू कंसिडर इन दिस न्यूमेरिकल कि कहाँ पे लगा है। सो अज्यूमिंग द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द लेंथ, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे लगा है ये अज्यूम करके यू हैव टू सॉल्व। सो वी एच इज इक्वल टू देन बी आई अपॉन एन ई, डी निकालो, या अगर आपको ये हॉल वोल्टेज अपने अक्रॉस, इस केस में ध्यान में रखिए हॉल वोल्टेज वी आर गोइंग टू मेजर अक्रॉस विड्थ ना, तब ये आएगा। Yes. अगर अगर किसी ने ये फॉर्मूला लिखा वी एच इज इक्वल टू बी आई अपॉन एन ई डब्ल्यू, सो हमें पता है कि हॉल वोल्टेज आपने मेजर किया हुआ अलोंग द थिकनेस, ओके। तो यू हैव टू कंसीडर एनी वन फॉर्मूला यू कैन यूज, बट ऊपर लिखिए कि द करंट इज फ्लोइंग अलोंग द लेंथ एंड वी हैव मेजर द हॉल वोल्टेज अलोंग द विड्थ, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड अलोंग द थिकनेस, तब ये आएगा। सो उसी के अकॉर्डिंग आपको चेंज करके सॉल्व करना है, अगर नहीं दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है देन यू कैन यूज योर फॉर्मूला। समझ में आया? अगर कोई स्पेसिफाइड नहीं किया हुआ कि वेयर इज द मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ पे लगा है या करंट कहाँ पे लगा है, तो आप कौन सी भी एक डायरेक्शन में ले सकते हैं। सो करंट ऑलवेज लेंथ के अक्रॉस आप जनरली अप्लाई करो तो गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूले जिसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो यू शुड बी रेडी फॉर दैट।